बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके दिली नेक मकासद पूरे करें। दोस्तों, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस सेशन से आपका फ़ायदा होगा। आज जी हमारे साथ बूवी टेक के CEO डॉक्टर उमर फ़रूक साहब मौजूद हैं और इनको हमने स्पेशल दावत दी थी जो हमारे ब्रीडिंग के स्पेशली पाकिस्तान में मसले मसाइल हैं। ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा लेमनेस का, जो एक हर फार्म का तकरीबन इशू है। तो उस हवाले से क्योंकि जो डच बुल्स हैं उनमें ये स्पेशलिटी है लेमनेस के हवाले से कि उनमें इश्यूज कम आते हैं उनके स्ट्रक्चर की वजह से। तो इसी वजह से इनसे रिक्वेस्ट की थी और फॉर्चुनेटली कि इनके जो बाहर के कंसल्टेंट हैं हॉलैंड के, जहाँ से ये सीमा ले रहे हैं, वो भी ख़ुद भी एक फार्मर है और बड़ा ही अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। उन्होंने अभी हमारा फार्म विज़िट भी किया, हमारे एनिमल्स भी देखे हैं और सजेस्ट किया है कि क्या क्या किन एरियाज़ में हम ब्रीडिंग के थ्रू जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं जी जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लिटिल बिट। Yeah, first of all, Dr. Javaid, and thank you for having time for us today. My name is Henk Brons. I work for the company KI Samen. We are the largest independent bull center in the Netherlands. Our background is farming, and we are still farming nowadays. We are over 20 generations in dairy farming, and over 40 years we have our bull center. Which slogan which we use, Dr. Javaid, is practical proven breeding. So we breed bulls like we still think our farmers want it, because we are farmers with a lot of attention to fertility and the right form of a cow. Because our philosophy, Dr. Javaid, is if the form of a cow is correctly, the functionality will be there. What we see nowadays is that cows are getting big in stature. Is that what we need? No, because in Holland we had a lot of 100,000 liter cows which produced 100,000 kg of milk. They were not the biggest in the herd. They were the medium-sized cows. And yeah, also Dr. Javaid introduced me his livestock, the cows. He's doing a great job. What he built in 2-3-year time. The next generation is there. Good to see them as well. And we had a fruitful discussion about our ideal cow, which is not that much different. Yeah, exactly. Yeah. You are here in Pakistan for fourth time. Third time, yeah. Third time, okay. Yeah. From last 3 days you are here, Yeah. and you visited different farms. What did you think in our environment? What changes we needed in our breeding? Now, it's difficult to say what changes this, but what I advise what I started to say already, a cow doesn't have to be big to produce a lot of milk, but especially a cow needs strength. I'm sweating, but a cow is not sweating. So what you need with a cow is to have a wide muzzle to get easily rid of the heat. A cow is producing heat when it's producing milk, what you know good as a doctor. And when we have more strength in a cow, she will produce easily. Because for every kilogram of milk, every liter of milk what is produced in Pakistan, a cow needs to pump at least 350 liters of blood. So what we like to see is strength in the chest width to have a good functionality for heart and lungs. Okay, that's good. And you have also an indoor system. It's not like the grazing system in Australia, or Holland is also a bit grazing, a bit indoor, but you have an indoor system. So that means also good quality feed and lack, which is important to survive on the concrete. And also in our opinion is then the placement of the trill bone, a very important bone, that cows make a good locomotion on the concrete sleds. Okay, that's good. अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा डॉक्टर उमर फ़रूक साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्योंकि मोस्टली हमारे जो लोग हैं शायद वो इंग्लिश को ना समझ सकें, कि इन्होंने जो जो बातें बताई हैं उसको काइंडली ज़रा उर्दू में फार्मर्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी जी, मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़रूक है, जैसे डॉक्टर साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है। और मैं बूवी टेक इंटरनेशनल एक कंपनी है उसका CEO हूँ और के सामिन नीदरलैंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं गुज़श्ता 5 साल से। के सामिन 40 साल से एक पहली प्राइवेटली ओन्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्टेशन है SPU है हॉलैंड में, जो कि बगैर किसी एसोसिएशन या किसी सब्सिडरी या किसी कोऑपरेटिव के काम करते हैं। फैमिली ओन्ड बिजनेस है जी। तो 1200 के करीब इनके पास जानवर हैं, 7 सूप डेयरी है, इनका अपना डेयरी फार्म है जहाँ वो एनिमल्स को टेस्ट करते हैं।
इनकी जो ब्रीडिंग फिलॉसफी है वो बड़ी मुख्तलिफ है बाकी दुनिया से। किसी भी किस्म के इंडेक्स को वो फॉलो नहीं करते। वो बिलीव करते हैं कि एनिमल के अंदर अगर फंक्शनैलिटी हो, यानी उसका जो जिस्म है वो इजाज़त देता हो उसको परफॉर्म करने का, तो एनिमल परफॉर्म करता है। उनके ख्याल में कि गाय की दूध देने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होना या कद बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। दूध देने के लिए एनिमल के अंदर फंक्शनैलिटी होनी ज़रूरी है, यानी उसके जो अज़ा हैं या उसके जो जिस्मानी डेल डोल है उसका तनासब होना बहुत ज़रूरी है। उसकी जो पसलियाँ हैं उनका घिराव ठीक हो, टांगों की जो प्लेसमेंट है वो ठीक हो, उसके जो अडर है प्लेसमेंट है वो अच्छी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड प्लेसमेंट को कह रहे हैं पिन बोन जिसे कहते हैं वो अपनी जगह पे हो और एनिमल बिल्कुल एक फ्लैट शेप में। मसला ये है कि ब्रीडिंग पाकिस्तान में होती है विद रिस्पेक्ट टू आप कह लें कि एक बुल को पिक्चर पे देख के उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, या मोस्टली एक जो उसकी प्राइस है वो उसका क्राइटेरिया है। हॉलैंड में इसका तरीकाकार ये है कि इंडिविजुअल एनिमल को देख के उसके अंदर जो जो कमी पेशी है उसमें वो बुल दिया जाता है जो उसको उस फॉल्ट को ठीक करे। इसको कहते हैं प्रूवन प्रैक्टिकल ब्रीडिंग, ताकि एनिमल जो आने वाला है उसकी फंक्शनैलिटी इम्प्रूव्ड हो। इनके ख्याल में ज़्यादा ऊंची जो गायें हैं उनको ज़्यादा मसले आते हैं पाकिस्तान के माहौल में, गर्म इलाकों के माहौल में। दूसरे नंबर पर वो कह रहे हैं कि उनकी जो नंबर 1 गाय है जो सबसे अच्छी उनको मानते हैं वो उन गायों को मानते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 लाख लीटर दूध दिया है। नॉर्मली हॉलैंड में 9 या 10 सुबह में गाय 1 लाख किलो दूध दे देती है, जो उनका एक क्राइटेरिया है। वो 100,000 किलोग्राम जितनी मिल्क वाली जितनी काउज हैं वो कोई ज़्यादा बड़ी गायें नहीं हैं, कोई मीडियम स्ट्रेचर वाली गायें हैं, उन्हीं को ये फॉलो कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे अपनी बाकी ब्रीड को आगे लेके चलते हैं। दूसरे वो ये कह रहे हैं कि एनिमल गर्म इलाकों में ख़ास तौर पे ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसका जो एनिमल का फेस है, जो उसका मज़ल है, उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मुंह से गाय तंग होगी तो वो सांस लेने में उसको मुश्किल होगी। गायों को पसीना नहीं आता चूँकि इतना ज़्यादा, तो उनको जो गर्मी है वो उनके नाक और मुंह से सांस के ज़रिए वो जो एक्स्ट्रा हीट है उसको वो रेडिएट करती है। अगर वहाँ उसको किसी किस्म की तंगी होगी तो वो बेहतर तरीके से गर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो इस पर ये लोग खास तवज्जो देते हैं वहाँ पर। अभी हमारे एक और फार्मर हैं अली अकबर साहब, नेस्ले के सप्लाई चेन के हेड हैं, उनका फार्म है AK डेयरी फार्म। एक्सपो पे परसों को तशरीफ़ लाए हुए थे, उनको हमने एक्सप्लेन किया, तो आज उन्होंने हमें भी इसकी पिक्चर्स भेजी जो डॉक्टर साहब इस वीडियो के एंड पे आपको दिखा देंगे। उन्होंने कंपैरिजन भेजा है कि कैसे हमारे वाले जो बुल्स के रिजल्ट आए हैं उनका मज़ल जो है वो कितना चौड़ा है, और जो दूसरे मुल्कों से आए हुए सीमन के रिजल्ट उन्हीं के फार्म पे उन्हीं गायों में से उनके जो मज़ल वेट है वो कैसे। इस तरह की बातें इन्होंने की हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी मुफीद हैं, और इसी वजह से हम इनके साथ एक बिजनेस कोलैबोरेशन में हैं कि पाकिस्तान की मार्केट को जो चाहिए हम वो सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में दूध बिकता है सॉलिड्स के ऊपर, या जो मिल्क कंपोनेंट्स हैं फैट, प्रोटीन, LR, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हॉलैंड में जो एवरेज है वो तकरीबन 4.4 फैट है और 3.4 3.5 प्रोटीन। अगर इतनी अब यहाँ ले लें तो आराम से जो 13 TS फार्मूला है प्रोसेसर का वो इजीली मीट होता है। तो इन लाइंस पे जो है वो हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, और हमें खुशी है कि हम पाक डेयरी गोल्ड को भी ये सेम सर्विसेज जो हैं वो दे रहे हैं डॉक्टर साहब के जरिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अच्छा, थोड़ा सा एक और मैं आपसे गुजारिश करूँगा क्योंकि आपका फार्म का भी एक्सपीरियंस है, आप बैरून मुल्क फार्म चलाते रहे और माशाल्लाह अच्छे तरीके से बड़े हार्ड का आपका एक्सपोजर है, और अभी काफ़ी अरसे से अपना बिजनेस भी आप देख रहे हैं। तो थोड़ा सा एक मतलब आम जो फार्मर है, मैं समझता हूँ जो मीडियम हमारे छोटे फार्म्स हैं, जिस तरह हमारा फार्म है जिसमें कोई 180 एनिमल्स है ब्रीडिंग के काबिल, तो उनको हर जानवर को देख के उसके क्राइटेरिया के मुताबिक सीमन सेलेक्ट करना वो थोड़ा सा एक मतलब चैलेंजिंग जॉब होती है, मैं जो समझता हूँ। तो ये थोड़ा सा बता दें कि एक इस तरह के फार्म के लिए सीमन सिलेक्शन को उसको कौन सी जो मोटी मोटी चीज़ें हों जिनको वो कवर कर ले तो वो समझेगा कि एक अच्छा उसने सिलेक्शन कर लिया। उसमें जी ज़्यादातर फार्मर जहाँ इसी तरह ब्रीडिंग करते हैं, मोस्टली बुल्स ऐसे बुल सेलेक्ट किए गए हैं जिनको सेलेक्ट करके आप ज़्यादा मेजर मिस्टेक्स ना करें, जनरल इम्प्रूवर बुल हों, ऑलराउंडर बुल हों, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आउट क्रॉस बुल हो। बदकिस्मती से हमारा 90% जानवर जो इम्पोर्ट होकर भी आ रहा है उसके साथ कोई पेडिग्री नहीं है। आपको पता नहीं कि पहले क्या उसके अंदर कौन सा ब्लड मौजूद है। आप सीमन लगाते हुए अगर सेम ब्लड लगा देंगे तो इन ब्रीडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके जो लीथल इफेक्ट्स हैं वो आगे आ जाते हैं, फिर आपको फर्टिलिटी चैलेंजेस आते हैं और हीट स्ट्रेस इशूज आते हैं। तो आउट क्रॉस मीन्स की जो न्यू ब्लड लाइन है, ब्रॉड जेनेटिक बेस वाली ब्लड लाइन्स हैं, वो अगर आप ब्लाइंडली भी लगा देते हैं तो वो चूँकि आपको पता है कि पहले नहीं यूज़ हुआ, मसलन जानवर आपके आए अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से आए, सीमन आप पहले सारे अमेरिकन यूज़ करते रहे, आज एक न्यू हॉलैंड की ब्लड लाइन आप ऊपर अगर लगाते हैं तो काफ़ी रेयर चांसेस हैं कि आप इन ब्रीडिंग से जो है का कोई इशू हो। तो एक तो इन ब्रीडिंग को आप लाजमी मद्देनजर रखें। दूसरा मीडियम स्ट्रेचर पर ब्रीड करें, उनका जो स्ट्रेचर है वो मीडियम हो ताकि वो लॉन्ग रन में। और
आउट क्रॉस का सबसे जो बेस्ट ज़रिया है वो ये है कि आप रेड एंड वाइट जो है उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि रेड एंड वाइट में 99% बुल्स आपको न्यूअर ब्लड लाइन वाले की मिलेंगे। ये एक अच्छा आइडिया है और पाकिस्तान ने अब तो इन एनिमल ने एक्चुअली आके अच्छा परफॉर्म किया, तो वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी। लेकिन कोई भी फार्मर अगर सायर मैचिंग करवाना चाहता है तो हम आके इंडिविजुअल काउज को देख के आपको ग्रुप बना के भी दे सकते हैं। हमारे जितने भी फार्म्स हैं डच काउज के, हम उन सारों में यही प्रैक्टिस करते हैं और उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे टाइम डेयरी है, ब्रदर्स डेयरी है, और जो फार्म्स हैं वहाँ में शाह सलमान डेयरी, RKW है, और भी कोई मोर देन 25 फार्म्स ऐसे हैं जो पिछले 1.5-2-3 सालों में हमने जहाँ जानवर दिए और बाद में सारी सर्विसेज दी। वहाँ पे हम उसकी पेडिग्री को लेके कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम उसकी जो है आगे जो उसकी फिजिकल फीचर्स हैं उनको मद्देनजर रख के ब्रीडिंग कराते हैं, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं जैसे कहते हैं कि ब्रीडिंग विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रिपेंसीज, यानी अगर एनिमल का इशू आ रहा है, मस्टाइटिस बार बार हो रहा है, उसको लो सोमैटिक सेल काउंट वाला बोल दें ताकि वो उसको ठीक करें। मेरे पास मिसालें मौजूद हैं कि गाय ऐसी थी हर महीने उसको मस्टाइटिस होता था, जब वो 26 लीटर क्रॉस करती थी लोकल क्रॉस करती थी, जब उसने 26 लीटर दूध देना साथ ही उसको मस्टाइटिस हो जाना, इंजेक्शन लगना उसने 10 लीटर पे आ जाना। फिर उसको हमने ऐसा बोल दिया नॉर्वेन फॉर एग्जाम्पल सोमैटिक सेल काउंट लो वाला, वो जब उसमें लगा तो आगे जो उसकी डॉटर आई वो तकरीबन 6 साल उसको हम करें, उसमें कभी मस्टाइटिस एक केस नहीं। तो इस तरीके से इसको जाना थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मैं जब भी ब्रीडिंग प्लान्स देता हूँ मैं सबसे पहले फार्म्स की जो पेडिग्रीज हैं वो देखता हूँ, एनिमल्स की हाइट और स्ट्रक्चर उन चीज़ों को देखता हूँ, फिर मैं उनका जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो देखता हूँ कि अगर एनिमल्स में बार बार लेमनेस हो रही है तो उसको जो अच्छे स्ट्रॉन्ग क्लॉ हेल्थ वाले बुल हैं वो दे देते हैं, ताकि रिलेटिवली थ्रू ब्रीडिंग डेफिनेटली इम्पैक्ट है। और इस वक्त कनाडा अमेरिका में भी जो इंडेक्स हैं वो अपने उनके जो सिर्फ 15% फार्मर्स हैं वही यूज़ करते हैं TPI, और उनमें भी मोस्टली वो हैं जिन्होंने बुल्स बेचने हैं, वरना मेजॉरिटी फार्मर इस वक्त कनाडा में भी थ्रू ब्रीडिंग चीज़ों को फिक्स करते हैं। अभी आप अगर अपने हार्ड में देखेंगे तो अक्सर एनिमल ऐसे निकलते हैं जो कि थ्रू आउट उन्होंने सारी लैक्टेशंस में कभी हॉस्पिटल में नहीं गए, ऐसे एनिमल होते हैं। तो उसी ब्रीडिंग पैटर्न में हमें लेके चलना है ताकि बाकी जिनमें इशूज़ आ रहे हैं उनको कैसे ठीक करें। नो डाउट इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स होते हैं, नो डाउट फीडिंग का बहुत बड़ा रोल है और चीज़ें, लेकिन उसी फीड उसी सिस्टम में बस मैं आम मिसाल देता हूँ कि बायोटिन डेफिशिएंसी को मुंसलिक किया जाता है लेमनेस के साथ, लेकिन आप देखें कि उसी फीड के ऊपर कुछ एनिमल्स की लेमनेस होती है, कुछ को नहीं होती, तो वहाँ एक वो रिफ्लेक्ट करता है कि एक जेनेटिक एलिमेंट। तो इस तरह की टेक्निकल चीज़ें होती हैं। चलो जी, जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ रहे। बहुत नवाज डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया, और डॉक्टर हसन साहब हमारे एरिया मैनेजर हैं लाहौर के, मिस्टर हैंक ब्रॉन्स हमारे मेहमान हैं। Again, thank you जी आपका। Yes, I would like to finalize this with thanks for visiting you. Thank It you was a very much. pleasure to meet you and to have a good and open discussion about practical proof breeding. Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसी के साथ ही जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।